Hello dear students, so we are in the last session for dimensional analysis, and in this video we will be doing finding formulas from dimensions, right? So you can expect few questions from this part as well. It's fairly simple. It's just a flavor of questions. If you do it once or twice, you'll be very comfortable. It's rather not to be missed kind of question in exams, because you will be having everything given to you. You just have to do some basic maths and get to the answer, right? So the concept here is simple. Let's say this is a physical quantity, let's say P, which depends on certain quantities, let's say quantity X and quantity Y and quantity Z. So what the problem will give you a certain physical quantity, and that will be depending on quantity X, Y and Z. But they will not tell you whether it's a linear dependency, it's a square dependency or a square root dependency, whatever. They will not give you. So you will have to assume these powers like this. So you'll assume P will be having some relation with X, Y, Z with some powers A, B, C. And these powers A, B, C will be your task to find using dimensions. So what you will do is, so now just to complete this, P will be equal to some dimensionless constant, because the physical quantity is depending on these quantities only. So apart from these, only a constant can come, right? So some constant X to the power A, Y to the power B and Z to the power C, right? So what you have to do, you have to understand and figure out dimension of this physical quantity, then find dimension of these quantities, and using homogeneity principle, LHS dimension is equal to RHS dimension. So you will find the dimensions of right hand side, dimensions of left hand side. You will form as many equations as there are dimensions. Let's say M, L, T. There are three dimensions involved: M, mass, length and time. So you will form three equations comparing the individual components, exponents of M, L and T, and then you will find the values of A, B and C, and that will eventually be your actual relation between quantity P and X, Y, Z. So ऐसे अगर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, इसको सिंपल आप एक एग्जांपल से समझिए, आपको सब चीजें एकदम आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया क्योंकि आई थिंक अगर आप 11th ग्रेड में भी हैं तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू mv²/r. अब ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है डायमेंशंस की हेल्प से. तो क्या दिया हुआ एग्जाम में आपको ऐसे दिया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम. ये अपने को दिया है, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट? बट कैसे डिपेंड करता है ये नहीं कि मास की पावर क्या है, वेलोसिटी की पावर क्या है, रेडियस की पावर क्या है, ये कुछ नहीं दिया है. बट ये बताया कि बस ये इन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो हमने ये दिस इज गिवन टू अस. अब बोल रहा है फाइंड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है? फाइंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. कुछ नहीं करना है अपने को, यहां पे लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वांटिटीज? इट डिपेंड्स ऑन mass, it depends on velocity, it depends on radius, right? Mass, velocity and radius given to us. लेकिन क्या पावर्स हैं, क्या कौन सी डिपेंडेंसी, स्क्वायर है, लीनियर है, ये हमको नहीं पता. सो वी विल assume this as A, B and C, right? And it depends, that will be proportional to some power of mass, some power of velocity and some power of radius. And A, B, C, this is unknown to us, ठीक है? Now write down the dimensions of this. We know this is M, L, T minus 2, right? ये हम लोग कर चुके हैं हमने प्रीवियस सेशन में, जहां हमने डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन सेशन किया था. तो वी फिगर्ड आउट डायमेंशंस ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो M, L, T minus 2, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट K. मास, अगर आप M को देखो तो M क्या है, एक मास, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा M, एंड दैट हैज टू बी रेज्ड टू द पावर A. Now velocity was meter per second.
LT minus 1. So this will be LT minus 1 whole raised to the power B, and R is what? Radius. Radius is nothing but length. तो आपने इसको लिख लिया डायमेंशन फॉर्म में L, एंड उसकी पावर आपने कर ली C. सो सेकेंड स्टेप वुड बी, अब वो कितना सिंपल है, पहले तो हमने काम किया, जो हमको दिया था हमने लिख लिया कि मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पावर सबको नहीं पता तो हमने लगा दी कुछ भी पावर्स और प्रोपोर्शन लिख दिया इसके, और उसके बाद एक नेक्स्ट इक्वेशन में सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट एम इन देन इन इंडिविजुअल चीजों की डायमेंशन जो हमें पता है, ये हमें पता होनी चाहिए। जो ये टर्म्स दिए हैं मास, वेलोसिटी, रेडियस या अदर फोर्स, इनकी डायमेंशन आपको पता होगी। वो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी होगी उसकी डायमेंशन आपको पता होगी, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया ऐसे, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप MLT माइनस 2 रहने दीजिए लाइक दिस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो जस्ट लेट इट बी हियर। यहाँ पे m की, अगर आप जस्ट नाउ कलेक्ट ऑल द पावर्स टुगेदर, राइट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मास कहीं और नहीं, तो मास तो यही रहेगा आपका m टू द पावर a। l में देखो l की पावर b आएगा, यहाँ से l की पावर c आएगा, तो यहाँ पे l की पावर आपका b प्लस c आ जाएगा, राइट, एंड t टू द पावर सिंपली माइनस b हो जाएगा। t टू द पावर सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस b, क्योंकि ओके t b। अब डायमेंशंस आर इक्वल, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये इंडिविजुअल MLT के एक्सपोनेंट यहाँ के एक्सपोनेंट्स के बराबर होने चाहिए, अदरवाइज हाउ द डायमेंशंस बी इक्वल, बिकॉज के तो डायमेंशन लेस है। तो यहाँ से ये आ गया हमारा, कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। b प्लस सी इज इक्वल टू, b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, अगेन 1 आ गया। l टू द पावर यहाँ b प्लस सी, यहाँ पे 1 है, और माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब b इज इक्वल टू 2 हो गया, a इज इक्वल टू 1 था गाइज। अगर b इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डाला तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 1, तो c यहाँ से आ गया माइनस 1। ये वैल्यूज हमको फिगर आउट करनी है यूजिंग दिस कंपैरिजन ऑफ द एक्सपोनेंट्स। आपने एक्सपोनेंट्स इंडिविजुअली डायमेंशन कंपोनेंट के एक्सपोनेंट्स कंपेयर करके इक्वेशन बनाई और आपने तो सॉल्व कर लिया। यहाँ पे सॉल्व करना काफी इजी, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तक। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए, बट आपको पता है कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूट करके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली A B C आने का मतलब गेम इज ओवर। क्यों? क्योंकि अब आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे इसके लेके जाऊं तो यहां हमने क्या लिखा था, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c, राइट। तो अगर मैं, if you guys don't mind, I can utilize this much space to finish this, right? So I can now write this as f is equal to k times, this will be mass to the power a मतलब 1, velocity to the power b is 2, तो v to the power 2 and r to the power -1, क्योंकि c is equal to -1। अब आप देख लो ये फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, k टाइम्स mv², और r की पावर -1 इज नथिंग बट 1/r। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमको यहीं तक डिराइव हम कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और ये एक लिमिटेशन भी है। सो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस you can just find the formula at a high level, but you will not be able to find the concrete formula, क्योंकि ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके लिए अननोन रहेगी। हाँ, हमको मालूम है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज दैट इज समथिंग वी नो फ्रॉम अदर मीन्स, बट फ्रॉम डायमेंशंस की बात करें तो हमको फॉर्मूले को यहीं पे छोड़ना होगा, ठीक है। तो या फिर हम लिख सकते हैं कि f विल बी प्रोपोर्शनल टू mv²/r। बट हाँ, ये चीज आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि तो अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या मतलब बेकार है ये? बेकार नहीं, आपने समझो ना, आपने फिर भी एक डिपेंडेंसी तो ड्रॉ कर ली फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर। यहाँ हम नोवेयर थे, यहाँ हम समवेयर वी आर वेरी क्लोज, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालना हो तो अगर मान लो एक नॉर्मल फॉर्मूले में अगर ये कोई डायमेंशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को निकालनी भी हो
तो आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकाल सकते हो, क्योंकि है तो ये कांस्टेंट। तो किसी एक फोर्स के लिए, किसी मास के लिए, वेलोसिटी के लिए, रेडियस के लिए एक बार इसको निकाल लो, और जो आ गया क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए वो सेम रहेगा, तो उससे आप फिगर आउट भी कर सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी काम का नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमको किसी चीज, जब आप फिजिक्स की रिसर्च कर रहे होते हो, मान लो आपको कोई रिसर्च करनी है, आप पीएचडी कर रहे हो फिजिक्स में, कोई फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल नहीं पता, यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद डायमेंशनल एनालिसिस एंड गेट टू सम पॉइंट, देन यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट फॉर्मूला एंड रिलेशन। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में, या आई थिंक हाँ जेई मेंस में किसी साल तो आया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन, मतलब वाटर वेव है उसकी वेलोसिटी जो है डिपेंड करती है तीन चीजों पे। वेवलेंथ पे बता रहे हैं, लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज रो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, ये हमको दी हुई है इंफॉर्मेशन। द मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स रिलेशन एज, अब बोला गया है कि वी स्क्वायर इसमें से किस रिलेशन को फॉलो करेगा, ये हमको डायमेंशनल एनालिसिस से निकालना है। तो वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे गाइस, आप देखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एकदम स्ट्रेट लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं एकदम, ठीक। जो बोला है वो लिख देंगे पहले, जो उसने खुद बोला है लिख देंगे। बोल रहा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, चलो ठीक है। डेंसिटी, इसको इसकी पावर हम लिख लेते हैं ए, डेंसिटी की रो की पावर हम लिख लेते हैं v, और क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g टू द पावर c। वहीं से स्टार्ट कर लिया मामला में अपना, जो उन्होंने दिया था वो लिख लिया। अब डायमेंशन लगा देंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको मालूम है, दिस इज lt -1, ठीक है, एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर a। अब लैम्डा क्या चीज है, वेव लेंथ, जिस चीज के नाम में लेंथ लिखा है इसका मतलब वो लेंथ ही है, ठीक है। तो दिस विल बी l टू द पावर a रो। अभी रो क्या होता है डियर, डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l क्यूब, तो m अपॉन l क्यूब मतलब ml-3। सो यहां लिख लिया इसको ml-3, ठीक है। देख रहे हो काम डायमेंशन से ही आ रहे हैं, सिर्फ एक और नई टेक्निक है ये, बस और कुछ नहीं है। तो आपके काम तो वही चीज आ रही है, आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। बेसिक क्रक्स जो है प्रॉब्लम का वो इसी पे लाई करता है, ये शुड बी कंफर्टेबल विद द डायमेंशंस ऑफ दिस। अब ये जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने क्या बोला, डायमेंशंस को इससे मतलब नहीं पता कि कौन सा एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है मतलब lt-2 है, lt-2 इसकी पावर हमने कर ली गाइस c। अब कलेक्ट कर लेते हैं इन पावर्स को, इधर तो सेम ही रहेगा lt-1, ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, यहां देखो लेंथ की एक पावर a आई -3b आई और वहां से c आई, सो a -3b प्लस c, सो दिस विल बी l टू द पावर a -3b प्लस c। m टू द पावर क्या आएगा, आप m की पावर देख लो, m सिर्फ यहीं पे है, सो दिस विल बी जस्ट b, एंड t टू द पावर क्या आएगा, सिर्फ यहीं पे मतलब -2c, सो t टू द पावर -2c। आई होप दिस इज विजिबल एंड क्लियर, राइट। तो अब अगेन इंडिविजुअल पावर कंपेयर करनी है, तो m की पावर यहाँ b है और यहाँ तो m है ही नहीं, इसका मतलब b हैज टू बी 0, क्योंकि यहाँ पे m नहीं दिख रहा आपको, तो मतलब m की पावर 0 है, वहां पे b है तो b हैज टू बी 0। नाउ a की l की पावर क्या है यहाँ पे 1, दैट मीन्स a -3b प्लस c हैज टू बी 1, और t की पावर यहाँ -1 है या -2c, तो इसका मतलब ये हो गया -2c इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू 1/2 प्लस में आ गई। अब b को हम 0 डाल देंगे, c को 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 1/2, ये दिख रहा है आपको, ये 0 हुआ तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज ऑल्सो 1/2। तो हमारे पास सब वैल्यूज आ गई, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा हमारा, v विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर a इज हाफ, सो लैम्डा टू द पावर हाफ रो टू द पावर b, तो b इज 0, इसका मतलब रो इज नोवेयर इन द पिक्चर, तो रो को हटा देते हैं, रो की पावर 0 लिखोगे मतलब 1, तो वो हट गया।
तो यहाँ पे आ गया g टू द पावर अगेन c मतलब 1/2। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हमको स्क्वायर में दिए हुए थे, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन स्क्वायर में दिए हुए हैं, तो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 का 1 हो जाएगा, इधर भी 1/2 का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा g एंड दैट विल बी योर आंसर बी। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। तो आपको ये रिलेशनशिप डिराइव करने वाले क्वेश्चंस में तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ डायमेंशंस पता होने चाहिए गाइस, और वो ऐसा कुछ नहीं होगा डायमेंशंस, जैसे से आप 11th में 12th में आगे बढ़ोगे रोज नई फिजिकल क्वांटिटी, बस आपको वही याद रखना है मेरी बात कि जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है उनकी डायमेंशन को हमें एक बार निकाल के देख लेना है, वी शुड बी कंफर्टेबल। और मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद समरी के बाद जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटी उस चैप्टर की होती हैं उन सबकी डायमेंशंस वो लिख के भी देते हैं, तो वहां से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको डायमेंशंस पता है इंडिविजुअल क्वांटिटीज की तो ये दिस इज लाइक ए नो ब्रेनर, टू बी ऑनेस्ट इट इज ग्रेड 8 ग्रेड 9 11 मैथ्स जो अभी आप कर रहे हो, एक्सपोनेंट्स आप कंपेयर कर रहे हो, उससे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा हम लोग इन्वॉल्विंग क्वेश्चन लेते हैं, इसी डोमेन का है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्विंग है ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं आपको। अच्छा उसकी ठीक है, सॉरी, इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये एक अलग वैरायटी है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत एक सिंपल सी वैरायटी है, कभी कभी हमने नहीं किए होते इस तरह क्वेश्चन, लगता है कुछ नया क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जनरली हमारे पास क्या होता है, मास लेंथ टाइम और बाकी सब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज रहते हैं और इसके टर्म में हम डायमेंशन निकालते हैं। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन को ऐसा कुछ ट्विस्ट कर दिया कि भाई हम मास को नहीं ले रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, हम फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं और बाकी लेंथ और टाइम वैसे ही है। अगर हम फोर्स लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज लें, इफ वी डू दैट, ऐसा है नहीं लेकिन हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है कि बना लिया हमने कि अगर ऐसा है तो इन टर्म्स ऑफ दिस न्यू सिनेरियो FLT बीइंग योर न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कहीं मास नहीं है, इसमें सिर्फ फोर्स लेंथ और टाइम है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपको जिस भी सिस्टम में डायमेंशंस पता है पहले आप उसको लिख लो, ठीक है। तो डेंसिटी की डायमेंशंस आप ऐसे लिख लो कि डेंसिटी की डायमेंशंस जो होती हैं भाई दिस इज ML-3, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राइट, ये अपने को पता है। अब L इज ओके क्योंकि लेंथ इज स्टिल द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मास नहीं है यहाँ पे मास नहीं। इसका मतलब हमें कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को कि मास को पिक्चर से हटाना है और लाना किसको है, फोर्स को। तो फोर्स और मास, अच्छा क्या कोई रिलेशन है फोर्स और मास का? जैसे मैं आपको सोचने की ये बता रहा हूँ, इस तरह से आपको सोचने की क्वेश्चन जो होगा कुछ अलग भी आ सकता है। तो अब नंबर 1 क्या लिखना है, पहले जिस भी सिस्टम में आपको डायमेंशंस पता है MLT में आप लिख लीजिए, लिख लिया आपने। उसके बाद देखा कि कौन सी चीज जो अनवांटेड गैस है, यहाँ पे अनवांटेड गैस जो है मास है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं फोर्स की, तो इसका मतलब फोर्स, मास को हटाना है, फोर्स को लेके आना है। अच्छा मास को हटाना है, फोर्स लाना है, क्या फोर्स और मास का कुछ इंटरडिपेंडेंसी है, क्लिक कर गया है F = ma, तो लिख लिया भाई F = ma होता है, F = ma होता है। तो अब यहाँ पे मास को हटाना है तो m = क्या हो गया, F/a। तो इसका मतलब अगर m की डायमेंशंस की बात करें या m की यहाँ पे मास की डायमेंशंस हुई m, तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये क्या हो जाएगी, फोर्स को आपको चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पे फोर्स को वापस MLT-2 मत लिख देना, ये MLT-2 फिर से m आ जाएगा, वो अपने हम उसको हटा रहे हैं, फोर्स को तो रखना है हमको। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, तो आपने लिख लिया LT-2, क्योंकि L और T से आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसने खुद बोला हुआ है कि लेंथ और टाइम हमारे अभी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ से मास की जो हमारी डायमेंशन आ गई, मास की डायमेंशन आ गई इन टर्म्स ऑफ फोर्स F(L-1)T2, दिख रहा है आपको, F(L-1)T2 की डायमेंशन आ गई, बस गेम ओवर है। क्यों? क्योंकि हमको ये m को यहाँ पे निकालना था, m निकाल देंगे, ये डाल देंगे, तो जहां पे m लिखा हुआ था वो m हटा के हम ये प्लग इन कर देंगे, तो ये रो की डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगी, डेंसिटी की डायमेंशंस आ जाएंगी। देखो F(L-1)T2 ये लिख रहा हूं मैं, ये तो हो गया मास की जगह, और साथ में एक L-3 पहले से था, इसको कैसे भूल जाएंगे भाई, ये तो लिख रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, F
L-1 -3 मतलब L-4 और ये आ गया T2। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? FL-4 T2। एक्चुअली थोड़ा सा शायद ये ऑप्शन में T2 होना चाहिए था। यस, आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी जस्ट चेक दिस। हाँ, दैट्स करेक्ट। ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये FLO4 में, तो ये ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा विद दिस। तो ये एक भी वैरायटी क्वेश्चन की होती है जिसमें आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर देंगे और बोलेंगे उनके टर्म में डायमेंशन लिखो। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अभी आप जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट, उनके पास वर्कशीट है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन 4-5 मिनट डाले हुए हैं, आगे प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब डियर ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप जेई एडवांस समझते हो, जो मोस्ट प्रीसीज एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन काफी इजी था। तो मैं यही बोलूँगा, डायमेंशन का क्वेश्चन चाहे एडवांस में आए चाहे वो मेंस में आए, वो टफ आ ही नहीं सकता, बिकॉज डायमेंशन इज नॉट रियली फिजिक्स, इट इज जस्ट सम बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसके क्वेश्चन को ना करके आना या छोड़ के आना या गलत करना थोड़ा सा इट इज लाइक कमिटिंग ए सिन, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमको तो इसमें स्कोर करना ही करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो एडवांस की प्रॉब्लम में आपको एक चीज और बता दूं मैं, कि कहानी बहुत देते हैं आपको, वो कहानी देके आपको मतलब थोड़ा सा पहले से बैकफुट पे डालते हैं, डराते हैं आप कि आप छोड़ दो, प्रॉब्लम करो ही मत। ये याद रखना कि कहानी पूरी पढ़ो, उसमें मतलब की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। उस कहानी का हमारी लाइफ में कुछ मतलब नहीं हुआ, हमें अपने मतलब का क्रक्स निकालना। पढ़ लेते हैं कहानी। If in a particular system of units, a physical quantity can be expressed in terms of electric charge E, electron mass me, Planck's constant h, and Coulomb's constant k, 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity in vacuum. In terms of these physical quantities, magnetic field को लिख रहे हैं e की पावर अल्फा me बीटा h गामा के डेल्टा। मतलब समझ रहे हो कि कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि जहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना था हमको, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको नए रैपर में डाल दिया है। फॉर्मूला डिराइव ना करने के बजाय आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है कि ये बोल दिया है कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इन पे डिपेंड कर रही है तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालो। अभी गो बैक टू द mv²/r वाला क्वेश्चन जो हमने भी किया, या उसके बाद v² = g लैम्डा वाला क्वेश्चन जो किया, उसमें क्या किया था? इन्हीं पावर्स की वैल्यू निकाली थी। क्या किया था? इनकी डायमेंशंस लिखी थी, डायमेंशंस लिखने के बाद इक्वेशंस फॉर्म करी थी और इक्वेशन फॉर्म करके उनकी वैल्यू निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? ये पूरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पूछा, दैट मींस वी विल हैव टू इवेंचुअली फिगर आउट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। और चीजें उतनी डिफिकल्ट होंगी नहीं, अब करना शुरू करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उसका पूछने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको याद रखना है कि यार कुछ चीजें ऐसी, अगर आप ये वीडियो ग्रेड 11 में देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेड 12 में भी देख रहे हैं, अगर आपने चैप्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ी है अभी, तो फिर वहां पे चैलेंज अलग हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू के पहले हम प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जो अदर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जाएंगे कैसे, ऑटो लेंगे कि टैक्सी लेंगे कि वो अलग चीज होगी, राइट। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम डायमेंशन की है, लेकिन अगर अभी आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हो प्रीटी अर्ली ऑन इन 11th और अर्ली इन 12th, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पता ही नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम दोगे जेई मेंस का, तब तो आप जनवरी 12th का जनवरी आप पूरा सिलेबस कर चुके होंगे। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी डायमेंशंस आपके टिप्स पे होंगी, बिल्कुल होंगे, एकदम आराम से होंगी। तो उसके बारे में हमें बॉदर ही नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीट देखना है कि एक्चुअल कंटेंट कहां से ये क्वेश्चन ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, इन्होंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे दी हैं और एक फिजिकल क्वांटिटी इन पे डिपेंड कर रही है। इस कहानी को भूल जाओ, क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है, वो इन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हमने लिख लिया ऐसे, अब बोला गया इनकी वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे? इन सब क्वांटिटीज की डायमेंशंस यहाँ डाल देंगे, पावर्स m l t वॉटेवर जो है कलेक्ट कर लेंगे और अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकाल लेंगे, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि कुछ डायमेंशंस हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी हो, चार्ज है ना, मैंने क्या बोला, डायमेंशंस को इससे मतलब नहीं है कि आप कौन से चार्ज हो, इलेक्ट्रिक के चार्ज हो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज हो कि प्रोटॉन के चार्ज हो, चार्ज हो ना। चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम, चार्ज की डायमेंशन लिखिए,
मास की डायमेंशन तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चाहे मास ऑफ माउंट एवरेस्ट हो, डायमेंशन तो m ही है। प्लैंक्स कांस्टेंट, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओ डायमेंशन एनालिसिस के, जिसमें मैं प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के बताई थी। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन अगर अभी भूल भी जाओ तो याद रखो कि प्लैंक कांस्टेंट इज डायमेंशन वाइज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, और उसकी डायमेंशन होती है ml²t-1 के। अब ये जो k कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई तो 4 एंड पाई दे आर कांस्टेंट्स नंबर, पाई इज 22/7 डायमेंशनलेस, 4 इज डायमेंशनलेस। तो खाली एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होती है, और उसको आप रिजॉल्व करके निकालोगे, ये आपको पता होगा 12th में ऑलरेडी। तो डायमेंशंस k की ये आती हैं गाइस। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस ये होती हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा चिंता मत करोगे, ये मुझे अभी पता नहीं है, दैट इज नॉट, ये आपको पता होगा, ठीक है। बाय द टाइम यू आर राइटिंग योर एक्चुअल एग्जाम ये आपको पता होगा। तो ये आपने लिख लिया, ठीक। अब प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम हमको ये सब चीजें पता है। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड जो है इट डिपेंड्स ऑन e⁴ उसके बाद me⁴ बीटा, h⁴ गामा, and if I can refer k⁴ डेल्टा, k⁴ ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन लिखो mt-2a-1, तो लिख लिया इसको mt-2a-1 लिख लिया, ठीक है। E की डायमेंशन लिखो at, तो ये लिखा हमने at, तो इस लिखा at और पावर लगी है क्या, अल्फा, ठीक है। उसके बाद मास me की पावर बीटा, h की डायमेंशन है ml²t-1, तो ये लिखा ml²t-1, एंड इस पूरे की पावर हमने लिखा गामा, और k की डायमेंशन है दिस ml³ t-4a-2, so this will be ml³ t-4a-2 and its whole की पावर डेल्टा। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब क्या करना है, बस इसके बाद जो होगा वो सिर्फ मैथ्स है। एक्सपोनेंट्स को इंडिविजुअली कलेक्ट करना है इस साइड पे, एक साथ लिखना है, 4 इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चलो L0 लिख लेते हैं, t-2a-1। देखो यहाँ पे L मिसिंग था, तो जस्ट तो आपको कंपेयर करने में इजी जाए, जो चीज मिसिंग थी उसको पावर 0 में लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब याद देखो, पहले हम m कलेक्ट करते हैं, तो m कहाँ पे है, ये है बीटा पे, अच्छा बीटा गामा डेल्टा। सो m की पावर आ रही है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तीनों से निकल के आ रहा है, इस वाले से नहीं है। फिर L निकाल लेते हैं, L की पावर क्या आ रही है, देखो L की पावर आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये आ रही है 2 गामा और यहां से प्लस 3 डेल्टा। सो 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, ये 3 डेल्टा, ठीक है ना। और उसके बाद t की पावर देख लो भाई, t कहां से निकल रहा है, t यहां से भी निकलेगा पहले वाले से, तो दिस इज अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस गामा, और यहां पे -4 डेल्टा, -4। और एक a बचा हमारे पास, a को भी लिख लो भाई, a की पावर क्या आएगी, अल्फा -2 डेल्टा, अल्फा -2 डेल्टा, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल, या अल्फा -2 डेल्टा, ठीक। अब कंपेयर करना है बस। जब आप ये काम कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंटली करना, क्योंकि ये अगर यहाँ पे गड़बड़ हुई तो आगे आने वाले 2 या 3 मिनट का जो एफर्ट है वो आपका सब वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप गलती कर रहे होगे। तो यहाँ पे रिव्यू भी नहीं करना है इसको, जब कर रहे हो उस समय पूरा ध्यान होना चाहिए कि सही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि गलती अगर आपने फर्स्ट सिस्टम में गलत कर दिया, आप दोबारा चेक करोगे तो भाई होता क्या है कि यू विल नॉट बी एबल टू स्पॉट एनी मिस्टेक। सो ये काम जो है वो ध्यान से करना है। अब यहां से हम जरा कंपेयर कर लें, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये 1 के बराबर लिखते हैं क्योंकि यहाँ m की पावर 1 है,
इसके अलावा हम लिख सकते हैं 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि एल की पावर यहाँ 0 है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू टी की पावर विच इज -2, एंड लास्ट में बोल सकते हैं अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू a टू द पावर -1, मतलब -1। ठीक, अब ये 4 इक्वेशन आ गई। पहले देखो क्या क्या चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से तुम देखो, अभी यहाँ पे इसको करने का जो मुझे सिंपल तरीका लग रहा है, आपके अपना आता है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इसमें ये नहीं सोचना कि अरे बाप रे 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन कैसे करना है, स्टार्ट तो करो। तो ये देखो, पहले सिंपल इक्वेशन है उनको देखो कि इसमें खाली 2 वेरिएबल है, ठीक है, इसमें भी खाली 2 वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास गामा और डेल्टा में रिलेशन है, अगर इन दोनों से हम अल्फा को एलिमिनेट कर लें, तो हमारे पास गामा और डेल्टा में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एक वो वाली और एक ये वाली, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इन दोनों को यूज करते हैं। तो यहां से आप जैसे अल्फा लोगे तो क्या आएगा, यहां से अल्फा आ जाएगा 2 डेल्टा -1, तो अल्फा की जगह मैंने लिख दिया इस इक्वेशन में 2 डेल्टा -1, ठीक है, प्लस गामा माइनस गामा -4 डेल्टा, दिस वाज -2, राइट। तो ये हो गया 2 डेल्टा -4 डेल्टा, तो मतलब -2 डेल्टा, तो -2 डेल्टा, और ये हो गया माइनस गामा, और ये आ जाएगा -2 + 1 मतलब -1, ये -2 है, राइट, और उधर भेजा 1 को -2 + 1। अभी हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है 2 गामा + 3 डेल्टा, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे 2 गामा है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 से क्यों किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 गामा और वो 2 गामा कैंसिल हो जाएगा, मेरे को डेल्टा मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो गया मेरा -4 डेल्टा -2 गामा इज इक्वल टू -2, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको मैंने। और यहाँ पे क्या है 3 डेल्टा + 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो इनको सॉल्व करते ही इनको ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आपका आ जाएगा -2, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 2। देखो एक चीज निकल गई आपकी, ठीक है। हमेशा याद रखना, जेईई एडवांस में फिजिक्स के क्वेश्चन में भी ज्यादा आपको तंग वो मैथ्स में करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नया बना नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैथ्स का कॉम्प्लिकेशन डालेंगे, सॉल्विंग का क्वेश्चन डालेंगे, कुछ कैलकुलस का पार्ट डाल देंगे। आगे के क्वेश्चन बता रहा हूँ जब आएंगे आपके फिजिक्स में, उसमें कैलकुलस इन्वॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व कर देंगे, थोड़ा मैथ्स का पोर्शन वो डालते हैं और वो क्वेश्चन को ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको जो चीज रोक सकती है एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के में, वो है सिर्फ आपकी मैथ्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब डेल्टा निकलते हैं, आपको मालूम है कि चीजें बहुत आसान है, अल्फा निकल जाएगा और गामा भी निकल जाएगा। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू 2 डालो, तो 2 गामा + 3 डेल्टा, सो 3 × 2 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो इसका मतलब हो गया गामा इज इक्वल टू -3 आ गया, गामा इज इक्वल टू -3। अब यहीं से अल्फा निकाल लो आप, अल्फा -2 डेल्टा, सो -4 इज इक्वल टू -1, सो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। बीटा, हमको बीटा और चाहिए, बीटा के लिए हम कहा, बीटा के पास एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, बीटा प्लस गामा। अच्छा एक्चुअली ओके, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, राइट। तो ये तो हमको 1 पता ही है, तो ये तो 1 पता ही है, और अल्फा निकल के आ गया 3, सो 3 और ऐड कर दो तो आंसर हो गया 4। मतलब बीटा अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें पूछा गया है इस पूरी चीज की वैल्यू, तो ये तो हमको मालूम ही है 1, क्वेश्चन में दिख रहा है, तो खाली अल्फा और चाहिए था। तो एक्चुअली द वाइज आइडिया वुड हैव बीन जस्ट टू सॉल्व सिंगली अल्फा। अगर आप सॉल्व करना चाहते नहीं कर पाते, ये तो आपको करना ही पड़ता, तो दिस इज नॉट फ्यूटाइल, इतना तो करना ही पड़ता। तो आपका आंसर हो गया 4, और 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट अ बिट ऑफ मैथ्स का थोड़ा सा तड़का लगाया है मैंने।
ठीक है। सो विद दिस सेशन वी एंड आवर डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने इस टॉपिक के 2 पार्ट कवर कर लिए, यूनिट्स और डायमेंशंस। डायमेंशंस इस पूरे चैप्टर का जो है सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। इसके बाद हम लोग लेंगे एरर्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एरर्स पे आएगा और उसके बाद हम सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।